نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر جتنی بھی عبادات کریں ہم اتنی کم ہے۔ یہ عبادات کا سیزن چل رہا ہے، نیکیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ ہم اس کے اندر جتنی بھی عبادات کر لیں، جتنی نیکیاں کمائیں اتنا کم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا گیا ہے اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اس میں ہم جتنی بھی نیکیاں کریں، جتنے بھی اعمال صالحہ کریں نا، اتنا کم ہے۔ اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ لہٰذا اس مبارک مہینہ کے پیش نظر ایک ایسے نماز کا طریقہ سامعین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس سے ہماری تمام گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ وہ نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ، چھوٹے بڑے، خفیہ طور پر کیے گئے گناہ، اعلانیہ طور پر کیے گئے گناہ، چھپ کر کیے گئے گناہ، دکھا کر کیے گئے گناہ، ہر طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس سے انسان کی ہر طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہو بڑے ہو، چھپ کر کیے گئے ہو، دکھا کر کیے گئے ہو، جان بوجھ کر کیے گئے ہو، بھولے سے کیے گئے ہو، انجانے میں ہو گئے ہوں، ہر طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے وہ نماز کون سی نماز ہے؟ آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، وہ نماز صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح، وہ نماز صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، اے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو اس نماز کو آپ ہر دن پڑھیں، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور اگر آپ اتنا بھی نہ کر سکیں تو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک بار تو ضرور پڑھے، اور اگر کہیں اتنا بھی نہ آپ سے بن سکے تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو جس طرح سے بھی ہو پڑھ ہی لیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس نماز کو ہم روز پڑھیں، ہر دن پڑھیں۔ اگر ہمیں اتنی فرصت نہ ہو تو ہفتے میں ایک دن ضرور پڑھیں، اتنا بھی وقت نہ ملتا ہو تو مہینے میں کوئی ایک دن مقرر کرے کہ جس دن اس نماز کو ہم پڑھ سکے اور پڑھیں، اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو سال میں رمضان کا مہینہ جب آئے تو کم سے کم رمضان میں ہم ضرور پڑھ لیں۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو کتنے توڑتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نا ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے کی جو ہے نا ہم کتنی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس نماز کو اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری تمام گناہیں معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نماز کو اس رمضان میں ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ آئیے اب میں اس نماز کے پڑھنے کے طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، چونکہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑا معاملہ ہو جاتا ہے، اور بہت بڑی پریشانی کا ایک سبب بن جاتا ہے کہ پڑھا کس طرح جائے۔ ہم فضیلت تو بتا دیے، لیکن پڑھنے کا اگر طریقہ نہ بتایا جائے اور نہ معلوم ہو تو پھر جو ہے نا انسان پڑھ نہیں پاتا۔ اس لیے اسی ویڈیو کے اندر جو ہے نا ہم آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے، سب سے پہلے ہم نیت کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم نیت کر لیں گے۔ نیت دیکھیے دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے کہا کہ آج ہم کو صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وضو کیا، مصلی پر کھڑا ہوا، یہی آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ زبان سے کہہ لیتے تو چلیے کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دل جو ہے نا، نیت اور زبان، دل اور زبان دونوں مل گیا، ٹھیک ہے، آپ نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو، کون سی تسبیح؟ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو دیکھیے، اس تسبیح کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ انشاءاللہ اسکرین پہ اس تسبیح کو جو ہے نا ڈال دیا جائے گا، اور اسکرین پر جو ہے نا آپ دیکھیں گے، اسپیننگ کا جو ہے نا آپ پڑھیں گے۔
इसी तस्बीह को जो है ना पूरे नमाज के अंदर पढ़ना है, हर रकात के अंदर 75 मरतबा करना है, हर रकात के अंदर 75 मरतबा करना है। 4 रकात नमाज होती है, इन चारों रकात के अंदर जो है ना हमें 300 मरतबा इस तस्बीह को पुराना होता है। इसी तस्बीह की वजह से इस नमाज का नाम है सलातुत तस्बीह, तस्बीह की नमाज। इस तस्बीह को इसमें इतना न पढ़ा जाता है, इतनी न रिपीट की जाती है और इतना न दोहराया जाता है कि इसी दोहराने की वजह से जो है ना इस नमाज का नाम ही रख दिया गया सलातुत तस्बीह, तस्बीह की नमाज। तो तस्बीह क्या है? सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सना पढ़ने के बाद हम इस तस्बीह को जो है ना 15 मरतबा पढ़ेंगे, फिर औज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ना हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरा मिलाएंगे, फिर इसी तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद हम रुकू में जाएंगे और सबसे पहले हम रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, यानी सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। इस तस्बीह को आप 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा, 13 मरतबा, 15 मरतबा, जितनी मरतबा चाहे बिनजोर आप पढ़ लें। उसके बाद जो है ना हम वो वाली तस्बीह करेंगे सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसको हम 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर रुकू से खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े होंगे और उसके बाद फिर इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद हम सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे और सजदे में जाने के बाद सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर सजदे से उठेंगे और दूसरे सजदे में जाने से पहले दोनों सजदे के बीच में जो हमने बैठा है तो उस वक्त भी इस तस्बीह को हम 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद हम दूसरे सजदे में जाएंगे और दूसरे सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे और दूसरे सजदा मुकम्मल हो गया। एक रकात इस तरह से हमारी मुकम्मल हो गई। इसके अंदर 75 मरतबा ये तस्बीह हो गई। सना के बाद 15 मरतबा। देखिए मैं आपको बताता हूँ 75 मरतबा किस तरह होगा। सना के बाद 15 मरतबा, 5 को अलग रख दीजिए, 10। देखिए सना के बाद 5 को अलग रख दिया 10, उसके बाद सूरह फातिहा सूरह के बाद 10, फिर रुकू में 10, रुकू से उठकर 10, पहला सजदा में 10, दोनों सजदे के बीच में 10 और दूसरे सजदे में 10। तो 7 10 कितना हो गया? 10 को जो हम 7 से जो है ना गुना देंगे, ज़र्ब करेंगे तो क्या होगा? 70 होगा। और 5 जो हमने अलग रखा था उसमें इसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे तो 75 हो गया। तो एक रकत के अंदर 75 हो गया और इस तस्बीह को एक रकत के अंदर 75 मरतबे ही पढ़ना है। तो एक रकत मुकम्मल हो गई। इसी तरीके से जो है ना दूसरी रकत भी, तीसरी रकत भी, चौथी रकत, चारों रकात को जो है ना अगली तीनों रकात को मुकम्मल करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे, इस बात को जो है ना हम ज़हन में रखेंगे कि चूंकि पहले मरतबा सना पढ़ा गया था, इसके अंदर सना ही नहीं। दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात के अंदर सना तो पढ़ना नहीं है। इसके अंदर जो है ना ताउज़ और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह, इसमें ताउज़ भी नहीं पढ़ा जाएगा, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी दूसरी, तीसरी, चौथी रकात के अंदर नहीं पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तो पहले हम इस तस्बीह को पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरह को मिलाएंगे, फिर इस तस्बीह को पढ़ेंगे, फिर रुकू में इस तस्बीह को पढ़ेंगे, रुकू की तस्बीह के बाद फिर रुकू से उठकर 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर पहले सजदे में तस्बीह के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे, फिर दोनों सजदे के बीच में इस तस्बीह को पढ़ेंगे, फिर दूसरे सजदे में जो है ना इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे। दूसरी रकअत भी मुकम्मल हो गई। उसके बाद हम तशहुद में बैठेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु पूरी पढ़ने के बाद जो है हम तीसरी रकअत के लिए खड़े होंगे, वहां पर भी पहले इस तस्बीह को 15 मरतबा पढ़ेंगे, फिर तस्बीह को बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरा मिलाएंगे, फिर इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे, रुकू में 10 मरतबा पढ़ेंगे, रुकू से उठकर 10 मरतबा पढ़ेंगे, तो पहला सजदा में 10 मरतबा पढ़ेंगे, दोनों सजदों के बीच में 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा पढ़ेंगे, फिर चौथी रकअत के लिए खड़े होंगे, इस तस्बीह को 15 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद जो है बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा, उसके बाद सूरा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा के साथ कोई सूरा मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा, फिर रुकू में 10 मरतबा, फिर जो है ना पहले सजदे में 10 मरतबा, रुकू से उठने के बाद 10 मरतबा, फिर पहले सजदे में 10 मरतबा, फिर दोनों सजदे के बीच में 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा। इस तरह से ना उसके बाद जो है ना हमारी तहियात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, दुआ मासूरा पढ़ेंगे। इस तरह से हमारी ये 4 रकअत की नमाज मुकम्मल हो गई। कितना आसान है, कितना आसान है। अगर हम इस नमाज को जो है ना हर दिन पढ़ते हैं तो क्या ही खूबी है, कितना खुशनसीबी की बात होगी, कितना खुशबख्ती की बात होगी अगर हर रोज पढ़ते हैं। रमजान का मुबारक महीना है, अगर हम सुबह जो है ना सहरी के लिए उठते हैं, आधे पौन घंटा अगर हम उठ जाते हैं तो इस नमाज को जो है ना हर रोज पढ़ा जा सकता है।
हर रोज पढ़ना मुमकिन है, हर रोज नहीं तो कम से कम इस महीने में जुमे के जुमे तो जरूर पढ़ लिया करे। कोशिश तो करें कि हर दिन पढ़ें, कम से कम रमजान में, और दिनों में जुमे का पढ़ेंगे, लेकिन इसमें तो हर दिन पढ़ने की कोशिश करें। बहरहाल जब कम से कम साल में या महीने में किसी तरह जो है ना इस नमाज को, इस हर रमजान में कम से कम जो है ना एक मरतबा जरूर पढ़ने की कोशिश करें। उम्मीद है कि ये जो है ना ये नमाजें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होंगी। इंशाअल्लाह इसी तरीके से जो है ना अगली वीडियो में जो है ना तहज्जुद के बारे में कुछ बातें बताई जाएंगी। तहज्जुद की रकात के बारे में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम बहुत जो है ना इसमें मुब्तला होते हैं कि 2 रकात है, 4 रकात है, 6 रकात है, 8 रकात है, 12 रकात है, कितनी रकात है हमें जो है ना अक्सर जो है ना हमें समझ में नहीं आती रहती है। सही बात हमको मालूम, कोई 2 रकात कहता है, कोई 4 रकात कहता है, कोई 8 रकात कहता है, और ना जाने इसी तरीके से कोई 12 रकात कहता है। कितनी रकात है, इसके क्या फसाइल है, इसके क्या तरीके हैं, किस तरह से पढ़ा जाएगा, तहज्जुद के बारे में भी इंशाल्लाह कल की वीडियो में जो है ना कल की वीडियो में जो है ना इंशाल्लाह इसको बताया जाएगा। इसके अंदर आपको इंशाल्लाह बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से जो है ना क्या कहते हैं नमाज, रोजे और दिन की अहम जो है ना बातें सुनने के लिए जो है ना और सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी जो है ना इन बातों से जानकारी हो सके, वाक़फियत हासिल हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी और आपको भी खुश, सही सलामत, तंदुरुस्त और बीमारियों से महफूज रखे। फ़क़त व सलाम, खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।